Good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. I'm Good audible. morning, ma'am. I'm audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Audible. Today we will discuss about elementary signals, manipulation of discrete time signals, or representation of signals in a discrete time. First of all, elementary signals. These are also called basic and standard signals. In signals and system, we need to use some standard or elementary signals. In this section, we will show some important standard signals graphically and express them mathematically. Now, first elementary signal is unit step signal. We have already discussed these type of signals in last semester. Unit step signal is one whose amplitude is 1 for t greater than equal to 0 and its value is 0 or amplitude is 0 for t less than 0. That means it does not exist for negative values of n. You can see here the mathematical expression of unit step signal. U of t is equal to 1 for t greater than equal to 0 and its value is 0 for t less than 0. And this is graphical representation of continuous time unit step signal. Continuous means having some value at every instant of time. Now its value is 0, t value is 0 to infinity, and u of t having some value that is 1 at every instant of time, that is 0 to infinity. That is in discrete form, it is denoted by u of n. Its value is 1 for n greater than equal to 0 and its amplitude is 0 for n less than 0. Discrete means having some value at particular instant of time, not every instant of time. जिसमें हर इंस्टेंट पे वैल्यू नहीं आएगी, कुछ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वैल्यू आ रही है. यहाँ आप चेक कर सकते हो 0 पे 1 है, 1 पे 1 है. इन बिटवीन 0 और 1 देयर इज नो वैल्यू इन डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस. So this is a representation of unit step signal. Next one is unit ramp. Unit ramp means output depends on input. If input is 1, then output is also 1. So mathematical expression is R of t. A ramp signal is R of t is equal to t for t greater than equal to 0 and its t greater than 0 and its value is 0 for t less than equal to 0. You can see here at t is equal to 0, ramp signal is also 0. At t is equal to 1, its value is 1 and t is equal to 2, its value is 2, up to so on. So it's a continuous time ramp signal. In the same way, discrete time R of n is equal to n for n greater than 0 and its value is 0 for n less than equal to 0. Next is unit impulse signal, that is also called delta function. It's denoted by delta of t. Now see here, its value is 1 only having single amplitude, that is 1 at t is equal to 0. सिर्फ एक वैल्यू पे इसकी t की वैल्यू पे एम्पलीट्यूड आता है, that is 0 पे. तो t is equal to 0, its amplitude is 1. Now you can see here that is 5 delta t minus 1. What is this? 5 into delta t minus 1. Any one of you? 5 delta t minus 1. मैम हमने सिग्नल को डिले किया है Delay किया by t minus 1. by 1. Okay. Then what is the meaning of 5? मैम उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1 से 5. 5. स्केलिंग की हुई है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग. अब यहाँ देखो, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 1 था. अब उसकी शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग हो रही है, डिले -1 है तो डिले हो रहा है. टाइम डिले कितने से डिले हो गया? 1 से. दैट मीन्स जो 0 वाला सिग्नल था वो 1 पे आ जाएगा, 1 पे वैल्यू हो जाएगी 1. बट यहाँ उसने लिखा 5. 5 मीन्स जो एम्पलीट्यूड था ओरिजिनल में उसे 5 से स्केलिंग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 5. 5 into 1 is 5.
So this is the shifted unit impulse signal having amplitude 5 and delayed by 1 unit or 1 step. The next is sinusoidal and exponential signal. All of you know about the sinusoidal, that is sine, cosine signals. You can see here x of t is equal to a sine 2 pi f naught t. We can also write it as a sine omega naught t. Omega naught is equal to 2 pi f naught, or f naught is indirectly proportional to time, that is f naught is equal to 1 by t naught. तो ये बन गया 2 pi by t naught. तो टी नॉट है फंडामेंटल पीरियड, एफ नॉट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ओमेगा नॉट एज एंगुलर फ्रिक्वेंसी और रेडियन फ्रिक्वेंसी. Second one is exponential signal. Exponential signal means a into e raised to power at. Also we can write it as e raised to power alpha into t, e raised to power alpha into n in discrete form. And see here, that is a into e raised to power j omega t. By using earlier identity, its value is a into cos omega naught t plus j sin omega naught t, a real and imaginary part. That is called complex exponential signal. Now we will do it in explain it. First is discrete time exponential signal. Suppose discrete time exponential signal is a raised to power n. Here a is some constant and n is the value of discrete signal, whether its value is 0 up to infinity. Now first is, you can see here, if a is complex number, अगर a complex है तो इसकी value बन जाएगी r into e raised to power j theta in polar form. Theta is phase and r is radius. Now what is the value of x of n? A raised to power n. Note down it on your copy. X of n is equal to a raised to power n. Now depending upon the value of a, we can find out the value of discrete time exponential signal. Now first case is a greater than 1. Suppose a greater than 1, let us assume a is equal to 3. That means x of n is equal to a raised to power n is equal to 3 raised to power n. Now by putting the different values of n, whether its value is n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, and negative side n is equal to -1, n is equal to -2, you can find out the value of x of n. तो ये फर्स्ट केस है कि जिसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो लिखो x of n is equal to 3 raised to power n. a को अज्यूम किया हुआ है 3, तो पुट करके n की डिफरेंट वैल्यू निकालो कितना आंसर आ रहा है और ड्रॉ इट. Do it fast. हाँ जी कर रहे हो? Yes, ma'am. Okay. मैम a greater than 1 है तो हम 1 ही लेंगे ना, 2 से स्टार्ट करेंगे. हाँ जी, यहाँ उसने 3 लिया हुआ, मैंने इसमें एग्जांपल में ना, आप 2 लेके कर लो. 3 लेके करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा जो बना है वो सही है कि नहीं है. Okay, ma'am. First put n is equal to 0. 3 raised to power 0 is 1. 1. Then put n is equal to 1. 3 raised to power 1 is 3. 3. Okay. Then put n is equal to 2. 3 raised to power 2 is 9. 9. Then put n is equal to -1. 3 raised to power -1 is equal to 1 by 3. 1 by 3. Then put n is equal to -2. That is 3 raised to power 1 by -2 equal to 1 by 9. Now 9. draw it. अब यहाँ देखो, यहाँ एम्पलीट्यूड आ रहा है इस साइड y एक्सिस पे x of n, इधर आ रहा है टाइम t, that is n. डिस्क्रीट है तो n लिखा हुआ है. अब जो जो हमने पॉइंट्स लिए 0, 1, 2 पॉजिटिव साइड आ गए, नेगेटिव साइड -1, -2. कर लिए ड्रॉ. Yes, ma'am. अब देखो 0 पे कितना एम्पलीट्यूड आया था 1. ड्रॉ कर दो. 1 पे एम्पलीट्यूड 3, 3 पे एम्पलीट्यूड 9,
-1 पे एम्पलीट्यूड 1/3 मीन्स 1 से नहीं। कम। देन -2 पे आया 1/9, 1/3 से भी कम हो गया। कर लिया ड्रॉ। यस मैम। अब इसे डॉटर लाइन से इनको पॉइंट्स को कंबाइन कर दो, ज्वाइन करो। हो गया मैम। अब देखो आपका सिग्नल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग। इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स Yes. राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। सिग्नल जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग व्हेन वी गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। जब आप एन की पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाओगे तो आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो इट्स ए राइजिंग डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Second case is Yes, ma'am. a value is greater than 0 but less than 1. Second case लिखो, a value is greater than 0 but less than 1. तो यहाँ वैल्यू उसने अज्यूम की है 1/3। 0 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए a की, बट 1 से कम होनी चाहिए, तो उसने अज्यूम किया 1/3। ओके, लिख लिया ये आपने? यस मैम। ये क्वेश्चन लिख ली? यस मैम। तो पुट Yes, करो ma'am. n की डिफरेंट वैल्यू पुट करो, -1 -2 0 1 2, 5 पॉइंट्स निकाल लो। हरी अप। हाँ जी, निकाल ली। यस मैम। n की वैल्यू 0 पुट करके कितना आ रहा है? मैम 1। ओके, -1 पुट करके मैम 3। 3, 1/3 रेज टू पावर -1 इज 3। -2 पुट करके 9। और 1 पुट करके 1/3। एंड 2 1/9। 1/9। now draw it. This is your x of n and x axis पे है n. By putting the different values of n and x of n, n की वैल्यू आपने ली है -2 -1 0 1 2। -1/2 पे एम्पलीट्यूड आया 9, -1 पे 3, 0 पे 1, 1 पे 1/3 एंड 2 पे 1/9। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स। तो क्या हो रहा है इसमें? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। सिग्नल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, फॉल हो रहा है। ओके, एनी डाउट? नो मैम। ओके, थर्ड केस इज a is लेस देन -1। a की वैल्यू है जो -1 से लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कितनी वैल्यू अज्यूम की है उसने? -3। करो, x ऑफ n बन गया -3 रेज टू पावर n। हाँ जी, कर रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. कितना है आंसर? मैम कर रहे हैं अभी। ओके, दो तरह की वैल्यूज बनेगी आपकी, एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बनेगा, एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड बनेगा। पांच छह वैल्यूज ले लेना इसमें n की ना,
-3 से +3 तक। ओके मैम। 0 पे कितना आया? मैम 1 1 पे, -3 2 पे, 9 ओके, -1 पे, मैम -1/3 देन -2 पे, 1/9 देन -3, -1.27 1/27. Now see here in this graph, 0 पे एम्पलीट्यूड 1 है, 1 पे एम्पलीट्यूड -3 है, 2 पे एम्पलीट्यूड 9 है, देन उसने 3 भी निकाला, डेट इज -27। -1 पे आ रहा है -1/3, -2 पे आ रहा है 1/9, -3 पे आ रहा है -1/27। अब देखो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड भी है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी है, तो पॉजिटिव वाले एम्पलीट्यूड को अलग से ज्वाइन करो, नेगेटिव वाले अलग से कंबाइन करो। देखो क्या बन रहा है। कर दिया? यस मैम। क्या हो रहा है, दोनों दोनों ग्राफ्स चेक करो। यहाँ देखो ये ऊपर तो बन रहा है आपका ग्रोइंग, राइज हो रहा है, नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। बोलो, चेक करो वैल्यू जरा। -1/27 से -1/27 से -1/3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -27 हुआ। क्या हो रहा है? मैम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। ओके, यहाँ पे देखो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ नेगेटिव एम्पलीट्यूड से इंक्रीज हो रहा है। सो इट्स अ डबल साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ओके, ओके मैम। एनी डाउट? No, नो ma'am. मैम। Last one is last case in which the value of a is greater than -1 but less than 0। 0 से कम होनी चाहिए वैल्यू, बट -1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसने वैल्यू ली है a इज इक्वल टू -1/3। करो पुट वैल्यूज एंड फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ x ऑफ n। First put n is equal to 0, 1 it is 1. By putting n is equal to 1, -1/3 -1/3. By putting n is equal to 2, 1/9 1/9. By putting n is equal to -1, मैम 1/3 1/3. Okay. By putting n is equal to -2, -1 पे फिर से चेक कर लेना एक बार। हाँ जी, n इज इक्वल टू -1 पे कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, किया किसी ने? मैम -1/9 -1 पे। मैम -1 हाँ पे जी भूपिंदर, -1/2 मैम 3 3 आ रहा है, ओनली 3 में आ भी रहा है। शायद। लिवांशी यस कितना आ यस रहा है? मैम। -3. -3। 1/3 इयर्स 3 रेज टू पावर -1 बन गया, -1 पावर ऑलरेडी है, वो बन गया 3। नेगेटिव साइन एम्पलीट्यूड के साथ आ रहा है, वो ऐसे ही रह जाएगा -3। ओके, ओके मैम। देन पुट n इज इक्वल टू -2। कितना आ रहा है -2? -9. -9। -9. ओके, नाउ सी हियर, ओके मैम। आपने 5 पॉइंट्स निकाले होंगे। -2 पे 9 आ गया, -1 पे -3 आ गया, 0 पे 1, 1 पे -1/3 एंड 2 पे 1/9। नाउ ज्वाइन पॉजिटिव एम्पलीट्यूड अलग से ज्वाइन करो, नेगेटिव जो एम्पलीट्यूड आ रहे हैं उसे अलग से ज्वाइन करो। नाउ ऑब्जर्व इट, क्या बन रहा है ये?
पॉजिटिव पॉजिटिव की और भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, और नेगेटिव से भी। डिक्रीज। तो ये क्या कौन सा बना? डबल साइडेड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, फॉलिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जिसमें एम्पलीट्यूड दोनों साइड पे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज, you can also see here, रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। ये देखो, डिके हो रहा है, राइज हो रहा है, ये डबल डिकेइंग, डबल ग्रोइंग हो रही है, डबल राइजिंग हो रही है। ओके, ये रहा डिस्क्रीट एक्सपोनेंशियल सिग्नल as expressed as x of n is equal to a raised to power n. Now next is rectangular signal, also called gate function. Any one of you, what do you mean by rectangular signal? What's the amplitude here? ड्यूरेशन कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है रेक्टेंगुलर पल्स में? एम्पलीट्यूड 1/a यस, और ड्यूरेशन -a/2 to a/2। टोटल विड्थ कितनी है? a ए। रेक्टेंगुलर सिग्नल में डोनेट वैसे करते हैं उसे रेक्ट टी से, RECT इंटू टी, रेक्ट सी से करते हैं डोनेट। मैं यहाँ लिखती हूँ सिग्नल को, ऐसे डोनेट करते हैं रेक्ट टी को। ओके, अब इसमें देखो, उसमें एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? 1/a, एंड विड्थ कितनी आ रही है? हाँ जी, विड्थ कितनी आ रही है लवांशी? अभी आपने बोली थी ए a, t/a. That is the expression of the signal rect t/a. A is this a, दिख रही है, विजिबल है to all of you? यस जो मैम। मैंने Yes, हाईलाइट ma'am. किया, that is called width और duration of signal, कि सिग्नल की ड्यूरेशन कितनी है, विड्थ कितनी है। सपोज मैं यहाँ 5 लिखूंगी तो कितनी विड्थ बन जाएगी? -2.5 से 2.5। फाइन। ओके मैम। तो ये 1/a क्या है? एम्पलीट्यूड। सपोज मैंने यहाँ लिखा 10, तो यहाँ 10 एम्पलीट्यूड बन जाएगा। ओके, ओके मैम। तो नेक्स्ट है सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन इज sin pi t by pi t। यहाँ देखते हैं, ये रहा, इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज, यहाँ t पे जगह पे x लिया है, सिंक x इज इक्वल टू साइन पाई एक्स ओवर पाई एक्स। अब यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंक x की वैल्यू डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ x पे। इफ इट्स वैल्यू इज 0, अगर x की वैल्यू 0 है, having maximum amplitude. If x value is goes on increasing towards positive values of n or towards negative side of n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. That means its amplitude goes on decreasing as the value of x increasing. अगर x की वैल्यू जब x पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा है या नेगेटिव की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इट्स एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। यू कैन सी हियर इन दिस ग्राफ अप्रोक्सीमेटली 0 जा रहा है। इन द सेम वे नेगेटिव साइड भी ये 0 हो रहा है। ओनली इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। ओके, क्लियर है? मैम रिपीट करना इसको। having maximum amplitude at only one point, that is x is equal to 0। सिर्फ x is equal to 0 पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। उसके बाद जो एम्पलीट्यूड है आपका वो डिक्रीज हो रहा है टुवार्ड्स पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x और टुवार्ड्स नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। अब नेगेटिव साइड भी हम इंक्रीज कर रहे हैं -1 -2 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव साइड भी इंक्रीज कर रहे हैं -1 2 अप टू इनफिनिटी। तो यहाँ चेक करो, जब हम पॉजिटिव साइड इंक्रीज हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होकर 0 की तरफ जा रहा है। When the value of x goes towards infinity, so in the same way जब यहाँ पे सिग्नल towards माइनस इनफिनिटी जा रहा है, एम्पलीट्यूड फिर से इंक्रीज हो रहा है। That means सिंक x की वैल्यू 0 हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 0।
Yes. That is sinc function. Okay. Okay, ma'am. Next one is signum function. These two are most important, sinc function, signum function. 2 marks question are what is a sinc function, what is a signum function, explain it. सिग्नम फंक्शन मैथमेटिकली इसे डोनेट करते हैं एस जी एन बाई टी इंटू टी से. एस जी एन ऑफ टी इट्स वैल्यू इज 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसकी वैल्यू 1 है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बट इट्स वैल्यू इज -1 फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी. और डिस्क्रीट में अब इस सिग्नल को ऑड भी बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं. ओके. Odd is also called antisymmetric signal. Discrete में इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0 से लेके इन्फिनिटी तक इट्स वैल्यू इज 1. नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए भी इट्स वैल्यू इज -1. See here mathematical expression of discrete function. SGN of n is equal to 1 for n greater than equal to 0 and its value is -1 for n less than 0. Okay. Okay, ma'am. The next is representation of discrete time signals. Representation of discrete time signal means a signal is having some amplitude at every or each value of n. अब discrete है तो कोई n की वैल्यू होगी उस पे amplitude होगा. अब उसको different methods, now the different methods are there to represent the signal. अब उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. ये आपको ग्राफ दिख रहा है जिसमें 0 पे 1 है, 1 पे एम्पलीट्यूड 2 है, 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, -1 पे -1 है, -2 पे 2 है और -3 पे 1 है. दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. अब ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन हुई सिग्नल को? डेट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. अगर ग्राफिकली आपने इसे रिप्रेजेंट करना हो तो ये सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है. ओके. अनदर रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर, सीक्वेंस. फंक्शनल क्या है कि आप ईच वैल्यू ऑफ एन को और एम्पलीट्यूड को एज अ फंक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे? मैंने लिखा x ऑफ n इज इक्वल टू 2. 2 पे कहाँ पे एम्पलीट्यूड आ रहा है? 2 किस किस पे पॉइंट पे आ रहा है? 1 पे और हाँ जी 2 एम्पलीट्यूड Ma'am, कहाँ one. पे है? Ma'am, 1, 2. Ma'am, एंड 0 -2 पे पे भी है. 0 पे 1 है. Okay, ये okay, ma'am. डॉटेड वाला देखो. अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया 2 फॉर n इज इक्वल टू -2, 1. अब 1 एम्पलीट्यूड कहाँ पे आ रहा है? चेक करो. 0 पे, 3 पे, -3 और पे. 3. वो भी मैंने लिख दिया. 0 कहाँ पे आ रहा है? ओनली 2 पे. ओके. Okay, ma'am. -1 एम्पलीट्यूड कहाँ पे आ रहा है? -1 पे. -1 पे. That is the functional representation of a discrete time signal. Okay. Okay, ma'am. अब टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में लिखना है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. अब यहाँ क्या किया हमने? एक ले लिया n, एक वेरिएबल ले लिया x ऑफ n. x ऑफ n डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n. तो n की वैल्यूज कितनी है? -3 से लेके 3 तक लिख ली. अब हर -3 पे एम्पलीट्यूड कितना था? 1, वो लिख दिया. -2 पे एम्पलीट्यूड 2 है, -1 पे -1 है, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 0, 3 पे 1. वो एम्पलीट्यूड लिख दिया यहाँ पे. दैट इज कॉल्ड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. क्लियर है फंक्शनल और टेबुलर? Yes, ma'am. ग्राफिकल भी क्लियर है कि ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिग्नल को. Yes, ma'am. नाउ लास्ट वन इज सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन. सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना. अब कितने वैल्यूज आ रही हैं आपकी? 7. Yes, ma'am. कौन कौन सी वैल्यू है? 1, 2, -1, 1, 2, 0, 1. ओके. यही है ना एम्पलीट्यूड? Yes, ma'am. यू कैन सी हियर इन दिस ग्राफ एम्पलीट्यूड आ रहा है 1, 2, -1, 1, 2, 0, 1. वो मैंने लिख दिया. अब यहाँ पे एरो कहाँ पे लगा हुआ है? 1 पे. व्हाट डज इट इंडिकेट्स? ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? 0 value.
एट n इज इक्वल टू 0 0 मीन्स जो सिग्नल है वो n इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना है 1 दे रहा है. टुवर्ड्स लेफ्ट साइड क्या होगा नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, टुवर्ड्स राइट क्या होगा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n. नाउ यू कैन वेरीफाई दिस सिग्नल बाय योर ग्राफ. तो सही है कि नहीं, सही पॉइंट्स लिखे. यस मैम. ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि n इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 1 है, 1 पे एम्पलीट्यूड 2 है, 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, -1 पे -1 है, -2 पे 2 है, -3 पे 1 है. यही था ना. दैट इज योर यस मैम. सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन. अब अगर एरो शो ना किया होता तो फिर क्या होता, व्हाट डज इट मीन. जो 1 है वहां से स्टार्ट होना तो है. बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू होगी फर्स्ट एम्पलीट्यूड होगा दैट इज एट n इज इक्वल टू 0, उसे आप n इज इक्वल टू 0 पे लोगे. ओके. नाउ यहाँ आप देख सकते हो ये एग्जांपल यूएस ने 1 2 3 4 5, तो इसमें एरो है ही नहीं, गिवन है नहीं है. तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू है 1 दैट इज n इज इक्वल टू 0, देन 1 2 3 4. तो रेंज कितनी है 0 से लेके 4 तक. अब इसमें देखो एरो दिया है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 0 से 4 ही है, सेम ही है. ओके. एनी डाउट. नो मैम. एक और है इसमें कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड जीरो पैडिंग कंसेप्ट. एक होता है लेंथ ऑफ सैंपल. व्हाट इज लेंथ ऑफ सैंपल. लेंथ ऑफ सैंपल क्या होगी, Number of हम elements. जैसे number of elements or we can say number of samples contained in a given sequence. अब यहाँ देखो 7 सैंपल्स हैं, तो आपकी रेंज कितनी है 7 सैंपल्स है. लेंथ कितनी है -3 से लेके 3 तक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी हैं पॉजिटिव भी हैं. अब इसमें क्या है आपकी लेंथ कितनी है 5 सीक्वेंस है. नंबर ऑफ सैंपल्स कंटेन्ड इन अ गिवन सीक्वेंस. ओके. सेकेंड एज जीरो पैडिंग कंसेप्ट. Now tell me what is zero padding. Zero padding. मैम जीरोस को ऐड करना. क्यों ऐड करते हैं जीरोस. यहाँ दिख रहा है ना, मैं लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है जीरो पैडिंग. यस मैम. हाँ जी, टेल मी व्हाट इज जीरो पैडिंग. मैम जैसे आपने सिग्नल एंड सिस्टम में करवाया था कि लेंथ ऑफ सैंपल को पूरा करने के लिए. सपोज वी हैव 2 सैंपल्स. फर्स्ट सैंपल की लेंथ है 5, सेकेंड सैंपल की लेंथ है 3. तो मुझे उस लेंथ को इक्वल करना है 5 के, तो कितनी मैं जीरोस ऐड करूंगी. मैम रिपीट करना. फर्स्ट First sample contains 5 samples. First sequence contains 5 samples.